Screen is visible. Yes, your screen is visible. Yeah. Oh, wait a second. Okay, so good evening, everyone. Myself Mandira Paul, and my roll number is 2119, and my topic is Bengal School of Art. So my objectives are how paintings recreates the history, और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव इसमें ये रहेगा कि ये अचानक से ये नेशनलिज्म को क्यों शो करने लग गया. So talking about paintings and art, it's a good way to बहुत अच्छा source है for history recreate करने के लिए, history को पढ़ने के लिए paintings are really very good source. और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये कोई नया न्यू टर्म है कि हमने आज से बनाना स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है, बहुत शुरू से चला आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जब अगर पेपर्स का भी इन्वेंशन इस तरीके से नहीं हुआ, पीपल आर मतलब वो अपना आर्ट रॉक्स वगैरह में भी शो करते थे. So my sources are paintings itself, they are source. So and another sources are Bengal and modernity, early 20th century art in India, the art of Shanti Niketan, Lalit Kala, contemporary too, album 1960 to 1991, Society of Contemporary Artists, Calcutta, Mukul De Birth Century Exhibition of Intaglio Prints and Drawings, and the graphic art of Mukul De by J.H. Bender, Shailoz Mukherjee, a homage by his student, and NCRT book Introduction to the Art, Part 2 में भी इसका जिक्र है. Okay, so from starting, originating in Calcutta and Shantiniketan, the Bengal School of Art promoted a distinctly Indian modernism which blossomed throughout the India during the British Raj of early 20th century by synthesizing uh, folk art, Indian painting tradition, Hindu imaginary or indigenous materials and depiction of contemporary rural life. Artists of Bengal School of Art celebrate humanism and bring a dynamic voice to Indian identity, freedom, and liberation. So, next, the Bengal school was a form of resistance that gave a rise to Indian nationalism. During the British Raj, when British Crown ruled the Indian subcontinent from 1858 to 1947, the traditional Indian painting conventions and styles had fallen out of popularity. जो नॉर्मल इंडियन पेंटिंग का जो वो मतलब उनका जो ट्रेंड था वो थोड़ा आउट ऑफ द लाइन चला गया, or largely because they didn't appeal to the taste of British collectors. In addition to the European painting techniques and subjects that were taught in artistic academics, company paintings were widely promoted, which scattered to the British sensibilities. Company painting presented Indian subject of indigenous plant life or traditional grab and rituals through both the European gaze and conventions of painting. Rather than celebrating Indian culture and tradition, it simplified them into exotica. And the Bengal school arose to counteract such imagery by turning to Mughal influences and Rajasthani and Pahari styles that presented elegant scenes of distinctly Indian traditions and daily life. Next, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जिसे कॉमनली कहा जाता था बंगाल स्कूल, और इसका एम बेसिकली था कि इंडियन स्टाइल ऑफ पिछले का पेंटिंग मतलब को. नहीं समझ में आया. Little bit clear about the last slide. ओके, तो सर इस टाइम पे यहाँ पे था कि ब्रिटिश राज के टाइम पे जब मतलब इंडियन पेंटिंग्स वगैरह थी, जो ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग्स थी, वो पॉपुलैरिटी से हट गई थी. और क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कलेक्टर्स के वो टेस्ट अकॉर्डिंग नहीं थे, तो उन्होंने अपनी यूरोपियन पेंटिंग टेक्निक्स और सब्जेक्ट्स को यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया या उसको इन्फ्लुएंस कर दिया. और यहाँ पे कंपनी पेंटिंग्स बहुत ज्यादा प्रोमोटेड की गई थी, जो इंडियन पेंटिंग्स में नहीं हो रही थी. जहाँ पे वो इंडिया में रह के उनको करना चाहिए था कि इंडिया का कल्चरल ट्रेडिशन दिखाना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. उन्होंने कंपनी पेंटिंग्स को थोड़ा और आगे कर दिया और यूरोपियन स्टाइल को Yes, yes. आगे Good, कर good, दिया. good. Go ahead. ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि बंगाल स्कूल को कॉमनली बंगाल स्कूल के नाम से, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता था. और इनका मेन एम जो था टू इन्फ्लुएंस डिस्टिंक्ट इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. इनका मेन जो मतलब एम था कि इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग को बढ़ाना. तो ये स्टार्ट हुआ था शांति निकेतन कोलकाता में, जो जनरली स्प्रेड अक्रॉस इंडियन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज. और उसके बाद
also known as the Indian style of painting in early days, aimed at inculcating a feeling of Indian nationalism और स्वदेशी amongst people, कि लोगों में एक जागरूकता बने कि हाँ हमें अपने देश के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि तब ऐसा हो गया था सब by it any art form, either in poetry, either in singing, सब अपनी तरीके से स्वदेशी मूवमेंट और नेशनलिज्म को शो कर रहे थे. सो पेंटिंग में भी वो चीज ले आए. और इसको किया किसने था? राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय एंड वन जो ब्रिटिशर थे, प्रोफेसर ई बी हेवल, जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट था. इनका बहुत ज्यादा सपोर्ट था इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग के पीछे. So Bengal School of Art come into existence in the beginning of 20th century when owning the nationalist movement, the Indian painters and artists against the activities of British Art Academy. तो Indian painters जो थे वो British Art Academy के against हो गए थे, और ना सिर्फ मतलब एक्टिविटीज अगेंस्ट हो गए थे, उन्होंने अपना वॉइस भी रेज किया और अपने आप को अलग कर लिया. Themselves following blindly the lifeless style of Western realism. And then in place, Indian prosperous tradition and values were started re-seen honorably. और वो अपने Indian values और इन सबको वापस ले आए थे. तो the Bengal School of Painting has led to down the foundation stone of the modern painting. Among the elegant disciple of Abanindranath Tagore, Nandalal Bose, Asit Kumar Haldar, हितेंद्रनाथ मजूमदार, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, शारदा चरण उकील, मुकुल दे, रविशंकर रावल, A.R. चुगताई, के वेंकटेप्पा with their techniques gave a new height of the modern art. अगर यहाँ पे अब आपको फर्दर कुछ स्लाइड्स में कुछ पेंटिंग्स दिखेंगी. जो लेफ्ट साइड में है दैट वाज लेडी होल्डिंग अ फ्रूट मेड बाय राजा रवि वर्मा, और जो लेफ्ट राइट में है वो अवनींद्र नाथ टैगोर की बनाई हुई मोस्ट फेमस पेंटिंग है भारत माता की, और जो बीच में है वो प्रोफेसर ई बी हेवल हैं जो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के कोलकाता के थे. नाउ इन द लेफ्ट यू कैन अगेन सी रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग दैट वाज पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, और बीच में अवनींद्र नाथ टैगोर का जर्नीज एंड, और राइट में नंदलाल बोस का शिवा एंड सती. तो मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी कि इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ किसी एक सेंट्रिक पे मतलब इंडियन ट्रेडिशन हर तरीके से दिखाया गया है, थ्रू इट्स एनिमल, थ्रू इट्स लाइक गॉड और गॉडेस, हर जगह से दिखाया गया है. Now again in the left side Jamini Roy's Three Girls, in the middle खितेंद्रनाथ मजूमदार का लॉर्ड चैतन्य, और उसके बाद गगनेंद्र नाथ टैगोर का अ कैरिकेचर. देवी प्रसाद रॉय ने दो यहाँ पे दी थी, डाउन द स्टेयरकेस और एक ट्रिम्फ ऑफ लेबर, और एक असित कुमार हल्दर का ध्रुवा. नाउ के वेंकटेप्पा का है मैरिज ऑफ लॉर्ड रामा, मुकुल दे का है डांसिंग गर्ल, A.R. चुगताई का है राधिका, शारदा चरण उकील ने राधा कृष्ण बनाई, और रविशंकर रावल ने अ कॉपी वर्क ऑफ अजंता मुरल. नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, कि उनका मतलब सब्जेक्ट क्या होता था, किस बेसिस पे वो बनाते थे. हिस्टोरिकल पेंटिंग्स होती थी, रिलीजियस पेंटिंग्स होती थी, लिटरेरी थीम्स पे होती थी, सोशल लाइफ पे होती थी, एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स उनको भी रिलेट करके बनाते थे. जैसे हिस्टोरिकल पेंटिंग में आपको दिखेगा बुद्धा एंड सुजाता, दिस पर्टिकुलर पेंटिंग ऑफ बुद्धा एंड सुजाता, और अकबर की भी पेंटिंग दिखेगी जो असित कुमार हालदार ने बनाई थी. रिलीजियस पेंटिंग में आपको वेरियस गॉड और गॉडेस की दिखेंगी, जैसे काली, शिवा एंड पार्वती, कृष्णा एंड गोपीज एटसेट्रा. लिटरेरी थीम्स में आपको मेघदूत बाय राम गोपाल विजय वर्गीय का दिखेगा. मैं फर्दर आगे के स्लाइड में आपको दिखाऊंगी वो. सोशल लाइफ में भी दिखेगा, और सोशल लाइफ में यहाँ पे अवनींद्र नाथ टैगोर ने जर्नीज एंड जो कैमल वाला मैंने दिखाया था, ये जर्नीज एंड, इन्होंने इसको सोशल लाइफ के थ्रू शो किया था, और इट्स अगेन बर्ड एंड एनिमल्स के कैटेगरी में भी ये आता है. Next, talking about their so Renaissance Bengal artists gave a sense of direction to the first art movement of the country. They showed the confidence in the traditional values and rich heritage of Indian art.
यहाँ पे कुछ न्यू टेक्निक्स भी लाई थी, जो पुरानी थी वो बेसिकली ऑयल पेंटिंग्स थी, और उसके बाद न्यू टेक्निक भी आई थी. द बंगाल आर्टिस्ट अडॉप्टेड अ न्यू जापानीज वाटर कलर टेक्निक कॉल्ड वॉश. Effect of Ajanta. The soul of Ajanta is clearly visible in the Bengal school of painting. They introduced linear delicacy, rhythm, and grace of Ajanta. Now, full of Indian tradition, वो तो आपको दिख ही रहा है, through the attire, through the ornaments and everything. This school is full of Indian traditional style of painting, which was actually the main aim of the Bengal school. Soft color with perspective. So इसका एक और अच्छा चीज साइड है कि सॉफ्ट कलर, जो कलर्स आपको दिखेंगी वो काफी सटल होगा, ज्यादा बहुत ज्यादा वाइब्रेंट नहीं, बट इट्स इन अ गुड मैनर. और इस हर पेंटिंग के पीछे एक पर्सपेक्टिव है कि क्यों बनाया गया है, किस टाइम पे, और ऐसा. Impact of Mughal and Rajasthani school. The impact of Indian miniature is also there in the painting at some places. Now, the first painting is the not first, like I just put it as in first. So this is Journey's End by Abanindranath Tagore, and the medium and technique is watercolor with wash and tempera technique on paper. So अगर हम इसका subject matter देखें तो this painting shows a tired and overloaded camel on the edge of death. In fact, the artist is showing a reflection of human life through this piece of artwork. So the painting was first published in Bengali magazine Provashi. A yellow, अगर आप अब इसमें एक एक फीचर का डिटेल है कि a yellow brown colored camel on his knees with his back legs upright, laden with a massive load on his back, is shown in this painting. His head slightly rose as if he would make another attempt to get up. तो आपको यहाँ पे दिखेगा उसके सामने के जो दो पैर हैं वो नीज पे हैं, और जो पीछे के दो पैर है वो ऊपर है, और उसके ऊपर काफी ज्यादा लोड है, और जो उसका मुंह है वो स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर है कि व्हाट इफ अगेन एक और अटेम्प्ट हो सकता है उठने का. The temperament and suffering of this weak, tired, hungry, and thirsty camel has been shown by his half opened eye, as journeys end by his listless body. अगर eyes की तरफ दिखेंगे, that was half covered, कि he's too tired, this camel is too tired of everything. In this background, through the proper combination of red, yellow, and brown colors, the painter has shown the real feeling of redness in the atmosphere of desert at the time of sunset. Okay, so next painting is Radhika. It's made by A.R. Chugtai. यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि for the further details, face पे enlarged face of Radhika और honey bee on lotus वो भी दिखाया गया है. Now again it's made by A.R. Chugtai और medium और technique same है, वही वाटर कलर विथ वॉश और टेम्पेरा टेक्निक ऑन पेपर. और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन अ टिपिकल इंडियन यंग गर्ल in standing pose and is feeling shyness. The painting Radhika is drawn in profile. She is delicately holding two lotuses in both of her hands. She is wearing a light violet color ghagra and red colored choli and yellow dupatta in typical Indian style. Her braid of black tresses, a long lock of woman's hair, is flowing down her back. Her downcast eye is unique in exaggerate arch of eyebrows. अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसने लाइट वायलेट कलर का अपना घाघरा डाला हुआ है, रेड कलर की चोली है और येलो कलर का दुपट्टा है, और आईज अगेन विद द शाइनेस, और जो आर्क आईब्रो में आर्क की बात की है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस पेंटिंग में. Ornaments are pearl necklace, pendant, gold and glass bangles and ring. बहुत minute details भी है, जैसे कि यहाँ पे pearl necklace है, उसमें painting है, again then earrings, bangles and rings. There is a lamp with a stand at the left side of the painting in Mughal manner. और आपने पीछे एक लैम्प भी देखा होगा, वो मुगल मैनर में था. The background is painted in a perfect blending of black, red and yellow color, creating a vivid expanse of bright colors in uniform and tonal gradation.
And the honeybee sitting on the lotus of Radhika's left hand is centrally composed in respect of totality of the painting which symbolize the presence of Krishna. नेक्स्ट पेंटिंग दिस इज द मेघदूत और इसको बनाया है राम गोपाल विजय वर्गिया ने अगेन विद द सेम मीडियम एंड टेक्निक और इसका जो सब्जेक्ट मैटर है द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन अ लिरिकल पोएम मेघदूत रिटन बाय कालिदास कालिदास के किसी पोएम का है ये उसका क्रिएट करके बनाया है हियर द हैंडसम यक्षा इज सिटिंग ऑन रॉक्स इन अ फॉरेस्ट एंड राइटिंग हिज फीलिंग्स his features are beautifully modeled with youthful softness. He is writing on a leaf with the right hand and holding a flower in his left hand. His expressions are somber with tears in his eyes as he longs for his beloved and his home while writing the message. He is wearing a yellow dhoti and a long stole hangs on his left shoulder. He is also wearing a necklace. Now, ही इज हैविंग फ्लावर इन हिज हैंड और वो उधर लिख भी रहा है और धोती भी पहन रखी है और साइड में एक स्टॉल जैसा भी है एंड जो लाइक कृष्णा ऑल्सो लाइक कृष्णा कृष्ण यस सर यस कहीं ना सर कहीं ये कृष्ण और गोपी का जो है ना वो आइडिया वो भी पोर्ट्रे कर रहा है टू शो दिस पिक्चर ऐसा लग रहा है कि कृष्णा विद अटायर इन द डिफरेंट अटायर ओके गो अहेड वेरी गुड यस ओके सो एंड डू यू नो व्हाई क्योंकि जो मथुरा से जब भक्ति मूवमेंट था ना तो मथुरा से कृष्ण पूजा याद है आपको कभी मैंने बताया था कि वो बंगाल में शिफ्ट हो गई थी विष्णुपुर बंगाल में एक ओके जगह का नाम है विष्णुपुर सो जब मथुरा में कंस का फिर वहां पे जो मुस्लिम्स का ये हुआ तो धीरे धीरे जो वैष्णविज्म है वो कहाँ पे चला गया विष्णुपुर कलकत्ता ओके सर गुड and his hairs are long and curled upwards at the ends उसके बाल भी long थे और curled भी थे at the ends in the background there is a thatched hut and thick forest in the green and yellow oaks. Two wave-like clouds are swirling into the composition towards the yaksha and painted with white, grey, and light blue. A few small birds are also flying in the स्काई पीछे यहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी दिखेगा और यहाँ पे हट भी दिखेगा यहाँ पे बर्ड्स भी दिखेंगे यहाँ पे क्लाउड्स भी दिखेगा सो इट्स लाइक अगर पोयम नहीं पढ़ी और उसका बस थोड़ा सा पता है और अगर जब आप पेंटिंग को देखोगे तो इट्स जस्ट लाइक कि आपको इटसेल्फ वो पेंटिंग खुद ही बोलेगा इतना माइन्यूट डिटेल्स के साथ होता है Okay, so next painting is Shiva and Sati. So everybody knows this story, Shiva and Sati ka. So it's made by Nandlal Bose or medium again with the same. और उसके बाद इसका theme जो है here Lord Shiva is shown seated and carrying goddess Sati in his arm and she is dead. तो ये वाला story सबको पता है जब सती ने अपने आप को आग में सेल्फ डाइंग का सिस्टम कर लिया तो ये वो वाला पोर्ट्रे कर रहा है सती हैज सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड शिवा सेल्फ रेस्पेक्ट लॉर्ड शिवा इज सोन seated and carrying dead goddess Sita in his arms. A halo is shown around the head of the Shiva representing him as God. आपको halo दिख रहा होगा पीछे or the monochromatic shades of one color painting seems to be inspired from Ajanta paintings. The shades of light in white color have been depicted on the foreheads of the both figure and also on the body of Shiva. The effects of clouds in the foreground are very impressive and the background is quite attractive. मतलब ये उस शेड की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे एक ही कलर से उसकी अलग अलग तरीके से उसकी शेडिंग करी गई है यहाँ पे व्हाइट पोर्शन जो पर्टिकुलर चीजें हैं बॉडी में दिखाया गया है ताकि वो ज्यादा उभरे शिवा के बॉडी पे भी है शिवा के बॉडी के पीछे आपको हैलो भी नजर आएगा कि एज अ हम गॉड हैं तो having some different respect for him particular. Okay, so and it is the one of the famous portrait of
Abanindranath Tagore, one of the most iconic painting from the Bengal school is Bharat Mata, Mother India, by Abanindranath Tagore, in which he depicted a young woman with four arms, जो जनरली हम हिंदू डिटीज में देखते हैं, मोस्टली गॉडेस के चार हाथ होते हैं, उस तरीके से डिपिक्ट किया है, होल्डिंग ऑब्जेक्ट सिंबॉलिक ऑफ इंडियाज नेशनल एस्पिरेशन. यहाँ पे इधर बुक की टाइप का है, इधर कपड़ा है, इधर वो आई थिंक ग्रेन्स का पकड़ा है, और इधर यस देयर शुड बी रीजनल जहाँ पे आप प्रे कर सकते हो अपने मन से, वो चीज डिपिक्ट किया है. Now, come to end decline with the spread of modernist ideas in the 1920s, the influence of Bengal school began to decline. But there is no doubt that the revolutionary movement pulled artists to look for a distinct Indian identity. And in that sense, Bengal school was the harbinger of modern art in India. Till date, the Government College of Art and Craft in Kolkata and Vishwa Bharati University in Shanti Niketan continue to train their students in the traditional styles of tempera and wash painting, carrying forward the legacy of one of the most significant period in Indian art. So basically, according to me, पेंटिंग बहुत एक अच्छा सोर्स है टू रिक्रिएट हिस्ट्री, क्योंकि इसमें इतना माइन्यूट डिटेल्स दिया हुआ है फॉर एवरीथिंग. अगर हम पर्टिकुलर किसी भी पेंटिंग की बात, जैसे इसकी बात कर रहे थे, तो वहां पे सब मतलब फॉरेस्ट भी दिखा रहे हैं, बादल भी दिखा रहे हैं, दैट पर्टिकुलर yaksha who is holding a flower and writing also, बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स, वो भी सारा शो कर रहा है. और कभी कभी होता है कि जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है थाउजेंड्स को किल कर दिया, तो देन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में स्ट्राइक करता है ऐसे कैसे किल कर दिया. तो पेंटिंग इटसेल्फ एक खुद स्टोरी बोलती भी है कि यहाँ पे लोग डाउट करने से पहले पेंटिंग को समझेंगे, और वो पेंटिंग खुद ही अपने से एक स्टोरी बताती है. तो दैट्स व्हाई I think painting is a good source for the recreating history, and that's all. Thank you. Okay, so good. चलिए, थोड़ा जल्दीबाजी में थे आप लोग, लेकिन फिर भी अच्छा है. मे आई प्रेजेंट समथिंग फॉर यू पीपल. पहले भी बताया है आप लोगों को, गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. ओके, मॉडर्न गैलरी ऑफ आर्ट. सो गुड. जो प्रेजेंटेशन है बंगाली स्कूल पे, इट इज इंटरेस्टिंग, और जितनी भी बातें थी वो समझ में आई. आई थिंक आराध्या, यस सर. समझ में आ गई? यस सर. क्या समझ में आई? 4 पॉइंट बताइए जो कि बंगाल स्कूल का इम्पोर्टेंट है. सर बेसिकली जब ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज सर, जो बंगाल आर्ट है सर, जैसे हम बात करें सर, तो सबसे पहले जो भारत माता की जो तस्वीर आई सर, हम पहले सर एज अ मदर, हम इंडिया को हमेशा सब एज अ मदरलैंड मानते हैं कि इंडिया एज अ मदरलैंड है हमारा सर. लेकिन सर उस टाइम पे सर बंगाल आर्ट की वजह से सर हमें सर एक रूप मिला सर, एक कि हाँ ये सही में एक लेडी है, हमारी माँ टाइप है सर. एक तो ये हो गया. एंड सर जब ब्रिटिश ने सर बंगाल आर्ट पे सर अपना सर थोड़ा इंग्लिश स्टाइल आए सर, तो वो एक तरह से हमारा सब पहले का हमारा सब हमारा जो हिस्ट्री है सर कल्चर की सर, सो वो थोड़ा सा खतरे में था अकॉर्डिंग टू सर मी सर. वो थोड़ा डेंजर में था थोड़ा. तो कुछ सर भी बोल एज अ, देंगे. चलिए, ठीक है, ठीक है, गो हेड, गो हेड. तो सर उसे मतलब इस तरह से उसे इमेज करना सर, भारत माता को इज अ चलिए, बिग भारत अचीवमेंट. माता का जो इमेज है वो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट दिया. अगर आप राजा रवि वर्मा के पिक्चर को देखेंगे या फिर तो उन लोगों ने डिफरेंट पिक्चर्स दिया है किसका, भारत माता का. ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा. ये कुछ नहीं है, ये जब आप जाएंगे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पे, तो आपको मिनिएचर पेंटिंग मिलेगी, जो कि शायद मानवी ने नहीं, मिनिएचर पेंटिंग प्रदीप ने. प्रदीप. हाँ, प्रदीप ने किया था. तो थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के पास, 10 मिनट का है अभी. तो ये है मिनिएचर पेंटिंग के कुछ स्टाइल्स, ठीक है ना. मेरा स्क्रीन शो रहा है मंदिरा? Yes, sir. Yes. So my screen is visual. So this is what
दिस इज द और मिनिएचर पेंटिंग का एक स्टाइल है। और आपका यहाँ पे जाएंगे तो इसको यूज किया है, ये है बंगाल पेंटिंग का जो स्टाइल है। ये मैंने उस दिन बताया भी था, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, उसके बाद उन्हीं की पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग ओरिजिनल आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ओरिजिनल आपको मिलेगी। जब भी मौका मिले आप लोग जरूर जाइएगा। चुगदाई की पेंटिंग है, फिर ये जितने भी है आपको, तो ये यहाँ पे आपको ओरिजिनल पेंटिंग उस समय बंगाली आर्ट का आपको मिलेगा। जितनी भी ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो बस आप इसको एक बार टर्न करते जाइएगा, ये है तो आपको ओरिजिनल जितनी पेंटिंग वहाँ पे ओरिजिनली है वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। उसी तरह से आप राइट हैंड साइड में देखिए, मैंने ऑलरेडी इसको बताया भी था आप लोगों को, काली घाट पेंटिंग, कंपनी पीरियड। सो एक अगर पेंटिंग को कंपेयर करना है तो ये 10 मिनट आप देखेंगे। और क्योंकि ईवी हॉवेल को आज मानवी ने भी कोट किया है, मंदिरा ने भी कोट किया है, तो उनकी उनकी बुक इम्पॉर्टेंट है। और आप ये एक बार इसको जरूर देखिएगा। मिनिएचर पेंटिंग से लेके यूरोपियन ट्रेवलर्स अकाउंट, कंपनी पीरियड, कालीघाट पेंटिंग, बंगाल स्कूल, जेमिनी रॉय, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, सो एंड मॉडर्न स्कल्पचर तो अलग चीज हो गई। और आर्ट मूवमेंट, तो इसको हम लोग आर्ट मूवमेंट भी से भी जोड़ सकते हैं। जो पेंटिंग इंडिया का है ना, उसको आर्ट, बंगाली पेंटिंग को एक मूवमेंट भी था। और वो मूवमेंट क्या था, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको नेशनल मूवमेंट से भी जोड़ेंगे, जो कि मंदिरा ने जोड़ा। सो मंदिरा, इन कंक्लूजन, गिव मी 5 important points about your topic. सो ओके सर, अगर 5 पॉइंट्स में, तो मैंने जब पेंटिंग्स को देखा तो उन्होंने फीमेल फिगर्स का बहुत ज्यादा यूज किया। दैट मीन्स कि फीमेल को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी। और दूसरी चीज कि हाँ, अगर हम पेंटिंग्स को अच्छे तरीके से देखें तो वहाँ पे इंडियन ट्रेडिशन का बहुत अच्छा दिखाया गया है, थ्रू द अटायर, थ्रू द सिस्टम, लाइक द गर्ल, मतलब तब के जमाने के लिए गर्ल शुड बी शाय, तो वहां पे एक शाय का भी पोर्ट्रे किया है, इस तरीके से ट्रेडिशन को दिखाया है। और पहले का एक मतलब न्यू टेक्नोलॉजी भी उन्होंने लिया। जैसे पहले वो ऑयल पेंटिंग से करते थे, अब उनके पास जब जापानीज वाटर कलर वॉश वो भी आ गया। और सर और स्टाइल, चलिए आप सोचिए, अभी आप मुझे थोड़ा इधर उधर ले जा रहे हैं। आप एग्जैक्टली 2-3 पॉइंट मुझे कॉन्क्रीट दीजिए कि अगर बंगाली स्कूल की बात करते हैं तो 3 इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या होगा, या नॉट डिफरेंस, इम्पोर्टेंस क्या है बंगाली स्कूल का, और मेन आइकॉन क्या है, मेन इम्प्रेशन क्या है कि अगर ये बंगाली पेंटिंग होगी तो उसमें क्या क्या होगा। 3, अभी मैं आता हूँ आपके पास। राम भवन, राम, यस, आप